जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पिछले जन्म में उनकी सुबुद्धि के जिस सीमा तक पहुंचने पर उनके आयुष्य की डोरी टूटी थी, उसी सीमा से आगे उन्हें नई और असीम सुबुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे पुरुष की बुद्धि उन समस्त गूढ़ रहस्यों और सिद्धांत तत्वों को आपसे आप और बिल्कुल ठीक जानने लगती है, जिनका ज्ञान साधारणतः सद्गुरु के उपदेश से हुआ करता है। उसकी प्रबल इंद्रियां उसके मन के वश में हो जाती हैं। मन आप से आप आत्मानंद में डूबने लगता है। अभ्यास स्वयं ही उसे सहज समाधि में स्थिति प्राप्त कराकर आत्म साक्षात्कार के द्वार पर ला खड़ा करता है। ऐसे पुरुष को योग स्थल का अधिदेवता अथवा मूल स्वरूप की महत्ता अथवा आत्मज्ञान की प्रतीति की प्रत्यक्ष अवतरित मूर्ति ही समझना चाहिए। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive spiritual sadhak, striving for yoga, stands always above the ritualistic principles of the scriptures. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ గారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 44. కిందటి జన్మలో అతని సుబుద్ధి ఏ సీమకు చెందిన తర్వాత అతని ఆయుష్ అనే బంధం తెగిపోయిందో ఆ సీమ నుండి ముందుకు అతనికి కొత్తది మరియు హద్దుల్లేని మంచి బుద్ధి లభిస్తుంది. అటువంటి పురుషుని బుద్ధి సమస్త రహస్యములను మరియు సిద్ధాంత తత్వములను తనంతట తాను సంపూర్తిగా తెలుసుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. వాటి జ్ఞానము సాధారణంగా సద్గురు ఉపదేశంతోనే కలుగుతుంది. ప్రబలమైన అతని ఇంద్రియములు అతని మనసుకు వశమవుతాయి. మనసు తనంతట తాను ఆత్మానందంలో మొలకలు వేయసాగుతుంది. అతని స్వభావము అతని స్వయంగా సహజ సమాస్థితిని లభింపజేసి ఆత్మసాక్షాత్కార ద్వారం వద్దకు తీసుకువచ్చి నిలబెడుతుంది. అటువంటి మహాపురుషుడిని యోగభూమికి అధిపతి అని లేదా మూల స్వరూపం యొక్క విశిష్టత అని లేదా ఆత్మజ్ఞానమునకు ప్రత్యక్షముగా అవతరించిన మూర్తి అని అర్థం చేసుకోవాలి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. മുൻ ജന്മത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൂല് പൊട്ടിച്ച ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരിധിക്കപ്പുറം അയാൾക്ക് പുതിയതും അനന്തവുമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ആഴത്തിലുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും യാന്ത്രികമായും വളരെ കൃത്യമായും അറിയുന്നു. അവൻ്റെ ശക്തമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുന്നു. മനസ്സ് യാന്ത്രികമായി ആത്മാനന്ദത്തിൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. പരിശീലനം തന്നെ അവനെ സഹജ സമാധിയുടെ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ വാതിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ യോഗസ്ഥലത്തിൻ്റെ അധിപനായ ദേവതയായോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെയോ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെയോ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെയോ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമായി കണക്കാക്കണം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. मागील जन्मात त्यांच्या ज्ञानाची मर्यादा जी त्यांच्या जीवनाचा धागा तोडून टाकला, त्या मर्यादेपलीकडे त्यांना नवीन आणि अमर्याद ज्ञान मिळते. अशा व्यक्तीचे मन आपोआप सद्गुरूंच्या शिकवणीद्वारे सामान्यतः ज्ञान असलेल्या सर्व खोल रहस्य आणि तत्वे जाणून घेऊ लागते.
त्यांच्या प्रबळ इंद्रिये त्यांच्या मनाच्या नियंत्रणाखाली येतात. मन आपोआप आत्मानंदात बुडू लागते. सराव स्वतःच त्याला सहज समाधीची स्थिती प्राप्त करून देते आणि त्याला आत्मसाक्षात्काराच्या दाराशी आणतो. अशा व्यक्तीला योगस्थानाचे प्रमुख देवता किंवा मूळ स्वरूपाचे महत्त्व किंवा आत्मज्ञानाची अनुभूती यांचे थेट अवतार मानले गेले पाहिजे. पिछला जन्म में जतऽ धरि हुनकर सुबुद्धि पहुँच चुकल छल, आ जेकर बाद हुनकर औरदा के डोरी छूटि गेल छल, एहि जन्म में ठीक ओहि सीमा सँ आगू हुनका नव आ असीम सुबुद्धिक प्राप्ति होइत छनि। एहन पुरुषक बुद्धि सब तरहक गूढ़ रहस्य आ सिद्धांत तत्व के अपने आप स्वाभाविक रूपेण बुझि लेबऽ लागैत छथि, जे ज्ञान सामान्यतः सद्गुरुक उपदेश सँ प्राप्त होइत अछि। प्रबल इंद्रिय सब आब हुनकर मौनक अधीन भऽ जाइत छनि। मौन सदिखन आत्मानंदक रसधारा में डूबल रहैत छनि। अभ्यास हुनका सहज समाधिक अवस्था धरि पहुँचा दैत अछि आ आत्म साक्षात्कारक द्वार पर ठाढ़ कऽ दैत अछि। एहन पुरुष के योग स्थलक अधिदेवता, मूल स्वरूपक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि आ आत्मज्ञानक साक्षात अवतरित मूर्ति बुझब चाही। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।